Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up Essay 402, which is audit considerations relating to an entity using the service organizations. We have already covered a lot of essays. In case you have missed out those videos, you can check the playlist. I have updated all the essays in a single playlist. You can check them out there. Okay, the description box is filled with a lot of details which you must be looking for. So just pause the video and check out the description box below. You can find out the notes over there and the link of playlist for all the videos that have been uploaded till date, right? Also, I've given the link of Telegram channel or Telegram group where I post the updates of any video which I upload on this channel. So you can join that group as well for more videos and updates. Okay, so let's start with this essay start कर रही हूँ मैं. essay के अंदर we are going to cover up a detailed discussion about this essay and also we are going to revise it. And in the beginning I will give you a brief idea about this essay and then we'll discuss it in detail, and after that we'll just quickly revise this so that we are able to remember also whatever we are studying over here, because understanding part is important, no doubt about it, but if you don't remember what you are studying or what you are understanding, then it's of no use. So it's better that we understand one thing and then we try to remember it also. So for remembering, you can refer to these videos at an increased speed. You can watch these videos again and again at an increased speed so that you are able to revise it quickly. And also I would recommend, after watching this video, take a break, just go through all the notes once again, self-review, and then quickly attempt all the questions which are related to this particular essays from whatever source you are referring to. It may be your teacher's book or any questionnaire or anything, institute's material. Just revise this essay and quickly solve the questions. Try to check whether you are able to attempt the questions of this particular essay and all the other essays as well, so that your essays will become strong. In exams, we all know essays cover a lot of marks, and for that we need to study the essays as a whole. We cannot miss out on any of the points. हमें नहीं पता essays में से कौन सा question put up हो सकता है, कौन से particular line के ऊपर, कौन से particular topic के ऊपर question आ जाएगा. So we cannot really afford to miss out any point. So that is why in my notes also I cover each and every point, जिससे कि कोई भी आपका point miss ना हो. And कोई भी question आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये topic तो मुझे याद ही नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है, याद छोड़ो सुना भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. So that is why detailed coverage is done of all the essays in my notes as well. आपको important points भी जहाँ पर हैं वो सारे highlight करे हुए हैं. देखो, कोई भी चीज़ आप word to word याद नहीं कर सकते, ये हम सबको पता है. हमें सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस करना होता है कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं. तो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं इसमें, जिसको देखकर आपको जल्दी से रिकॉल हो पाएगा, राइट. तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एसे नाउ. नो मोर डिस्कशंस, ओनली फोकस इज ऑन द एसे नाउ. अच्छा, सबसे पहले द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, व्हेन इज दिस एसे एप्लीकेबल. हमें इस एसे को कब अप्लाई करना होता है. हर एक केस में क्या एसे 402 विल बिकम एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी एंटिटी? नो, द आंसर इज नो. ये ऐसे एप्लीकेबल होता है जब कोई एंटिटी किसी और एंटिटी की सर्विसेज को यूटिलाइज कर रही होती है, और उस आउटसोर्स्ड सर्विस के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या जो सर्विसेज ले रही है उसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें सही से हो रही हैं नहीं हो रही. फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर आया किसी एंटिटी के अंदर. अब जिस एंटिटी का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है इस ऐसे के लिए, उस एंटिटी को हम यूज़र एंटिटी बोलते हैं. अब इस यूज़र एंटिटी ने क्या किया हुआ है, इस यूज़र एंटिटी ने किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सर्विसेज अवेल कर रहे हैं एंड इन सर्विसेज को बेसिकली इस एंटिटी ने आउटसोर्स करा हुआ है, मतलब खुद से ना परफॉर्म करके वो किसी और से इन पर्टिकुलर सर्विसेज की इन सर्विसेज को ले लेते हैं. तो इसके लिए अब हम एज एन ऑडिटर हमें क्या प्रॉब्लम होगी, हमें देखना पड़ेगा ना कि जो ये सर्विसेज अवेल की जा रही हैं, अगर ये सिग्निफिकेंट सर्विसेज हैं और इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बहुत इफेक्ट आ सकता है, और मुझे एज एन ऑडिटर हर एक चीज़ की इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने होते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट इस पर काम कर रही है, डेटा का सोर्स क्या है, और क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाई कर रखे हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको किस तरीके से मेंटेन कर रखा है, क्या सारा का सारा डेटा करेक्ट एंड ट्रू है. तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मेरे को एज एन ऑडिटर
कंट्रोल्स चेक करने की ज़रूरत है। अब मैं कंट्रोल्स कैसे चेक कर पाऊंगी? जब सर्विसेज जो ली जा रही हैं वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, वो पर्टिकुलर काम एंटिटी खुद से कर ही नहीं रही है, तो डेटा एंटिटी के पास नहीं होगा, एंटिटी तो किसी और से उस काम को करवा रही है। तो अब मुझे उस पर्टिकुलर एंटिटी पर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे कि वो डेटा को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ से इनपुट्स आते हैं, मैनेजमेंट के साथ उनकी कितनी कम्युनिकेशन होती है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए इट विल बिकम अ कम्बरसम प्रोसेस। ऑल्सो जो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारी ही एंटिटी को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी, हो सकता है ना और भी हमारी एंटिटीज़ की तरह ही दूसरी एंटिटीज़ हो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से ये सर्विसेज ले रही होंगी। तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर हर एक एंटिटी के ऑडिटर्स जाकर उनसे बोले कि हमें आपके इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है। इससे बेटर क्या होगा कि कोई और ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर दे और एक रिपोर्ट इशू कर दे टू ऑल दी ऑडिटर्स हु आर आस्किंग फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो ये ज़्यादा बेटर होगा, है ना। सभी ऑडिटर्स को अलग अलग से प्रोसीजर्स परफॉर्म करके इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके चेक करके फिर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस पर प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर उन असेस्ड रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कोई फ्रॉड के चांसेस तो नहीं है, एरर्स के चांसेस तो नहीं है। तो ये सब काम हर एक ऑडिटर करे, उससे बेटर है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक ऑडिटर ये सारे काम करके, ये सारी चीज़ें चेक करके हमारे ऑडिटर को बता दे, है ना। तो अब जो हमारी एंटिटी है जिसको हम यूज़र एंटिटी बोल रहे हैं, उसके ऑडिटर को क्या बोलेंगे? यूज़र ऑडिटर, इस पूरे एसे के अंदर। और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑडिटर को हम बोलेंगे सर्विस ऑडिटर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी। देखो ये भी तो हो सकता है ना कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये काम किसी को आउटसोर्स कर रखा हो, वो खुद से ये काम नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो अब ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बन गई एक और, मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने भी आउटसोर्स करा हुआ है, तो कोई और सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम प्रोवाइड कर रही है। अब मैं यूज़र एंटिटी हूँ, मुझे डिटेल्स चाहिए, मुझे इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं। मेरे को सर्विस ऑडिटर ने बताया कि ये वाला काम तो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करती है, हमने भी ये काम आउटसोर्स करा हुआ है और मैंने उसके इंटरनल कंट्रोल्स को चेक नहीं किया है। तो अगर ऐसा आपको सर्विस ऑडिटर बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर ये सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। एसिड 402 के हिसाब से आपको सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस ऑडिटर या ऑडिटर से जाकर रिपोर्ट्स लेनी पड़ेंगी, जैसे आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर से ले रहे थे कि आपकी एंटिटी में किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, डेटा कहाँ से आता है, कैसे आप उसके प्रोसेसिंग करते हो, किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, क्या क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं टू प्रिवेंट दी मिस स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो चीज़ करनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका ऑडिटर, सर्विस ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स की भी डिटेल बता रहा है। अगर वो बता रहा है तो वेल एंड गुड है, आप उस पर रिलाई करके अपना यहाँ पर यूज़र एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट में इजीली मेक श्योर कर सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो ऑफ दिस। लेकिन अगर सर्विस ऑडिटर ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है अबाउट दी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे 402 के हिसाब से जैसे आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रोसीजर्स अप्लाई करे थे, वही सारे प्रोसीजर्स यू विल अप्लाई ऑन दी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, अभी अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो डोंट वरी, हम नोट्स के साथ साथ एक एक करके एक एक लाइन डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, एक बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ इन योर माइंड कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हम इस एससी के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे अगर ये सारी चीज़ें समझ आ गई, ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये ऐसे आइडिया मिल गया, बैकग्राउंड मिल गया, अब मैं इसको डिटेल में नोट्स के साथ करती हूँ, ठीक है। सो एसे 402 इज अबाउट व्हाट? एसे 402 इज अबाउट द ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऐसी एंटिटी जो किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज ले रही है, तो उस केस में एज एन ऑडिटर मेरी क्या क्या कंसिडरेशंस होंगी। सो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। ऐसे 402 अप्लाइज व्हेन द ऑडिटर इज ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी which is availing the services
फ्रॉम अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई एंटिटी अगर किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विसेज अवेल कर रही है और मैं उस एंटिटी नंबर 1 जो अवेल करने वाली एंटिटी है उसका ऑडिट कर रही हूँ, तो उस केस में आई विल हैव टू अप्लाई SA 402। एंटिटी है A, एंटिटी है B। एंटिटी A एंटिटी B से कुछ सर्विसेज ले रही है, तो अब एंटिटी A का जो ऑडिटर है दैट विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर SA। आई होप इट विल बी क्लियर कि इस पे एप्लीकेबल है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ऐसे केसेस में होता है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इस चीज़ को देखो और उसका हमारी एंटिटी पर कितना सिग्निफिकेंस है उसको चेक करो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। देखो कि हम यूज़र एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स पर इन सर्विसेज का क्या इफेक्ट आ रहा है, हमारे ऑडिट पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं क्या उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, असेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, डिज़ाइन करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे कि हम जो रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन रिस्क के कॉरस्पॉन्डिंगली और अगेंस्ट में हम क्या दे पाएँ, रिस्पॉन्सेज दे पाएँ। सो हमने ऐसे 315 ऐसे 330 ऑलरेडी करा था, उसमें हमने पढ़ा था ऐसे 315 में कि हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल्स, जिसमें हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं एंड उनके लिए रिस्पॉन्सेज क्रिएट करते हैं एज पर ऐसे 330। तो वही चीज़ यहाँ बोली है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, obtain करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दी सर्विसेज which have been provided by the service organization and their effect on the user entities internal controls which are relevant to the audit sufficiently to identify and assess the risks of material misstatements। अब और क्या करना होगा ऑडिटर को डिज़ाइन करना होगा, परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर्स को विच आर रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क्स। ओके, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। ये मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम ही बता दिया था कि एंटिटी 1 है, एंटिटी 1 को इस पर्टिकुलर एसे में यूजर एंटिटी बोला जाएगा। ये एंटिटी 1 एंटिटी 2 से कुछ सर्विसेज ले रही है, सीधी एरो एंटिटी 2 से सर्विसेज ली जा रही है एंटिटी 1 के द्वारा। Now this entity is the user entity and entity 2 is the service organization. It is the third party organization which is providing the services to the entity 1. Okay. Now the auditor of entity 1 will be known as user auditor and the auditor of entity 2 will be known as the service auditor. Okay. I hope आपको terms clear हो गई होंगी. So this is the next topic and this is important from the exam point of view. Matters on which the user auditor कौन, entity 1 का auditor requires the understanding. So risk assessment procedures क्या होंगे, risk assessment process क्या होगा। So सबसे पहले ये चीज़ समझो कि user auditor को कहाँ पर understanding की ज़रूरत है। यूज़र ऑडिटर को ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं, किस टाइप की सर्विसेज हैं जो आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है टू द यूज़र एंटिटी। आपको देखना पड़ेगा कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनका सिग्निफिकेंस कितना है फॉर द यूज़र एंटिटी। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कर रही है और वो ट्रांजैक्शन किस टाइप की है, कितनी मटीरियल है फॉर द यूज़र एंटिटी। आपको देखना पड़ेगा यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, कम्युनिकेशन कितना होता है, इंटरेक्शन कितना होता है बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, जैसे कौन सी टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, कितना फ्रीक्वेंटली होता है, किस तरीके से डेटा प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल what you have to understand being a user auditor. So these are the matters on which the user auditor requires an understanding. What are these matters? First one is the nature of services. किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो कितनी मटीरियल हैं, किस नेचर की है, कौन सी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की जा रही हैं बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कितना इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ एसओ एंड दोज ऑफ यूज़र एंटिटी, किस टाइप का रिलेशनशिप है बिटवीन द यूज़र एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्या सिग्निफिकेंस है उन ट्रांजैक्शंस का, सर्विसेज का जो आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसको याद करना है हमें। ठीक है, कौन से मैटर्स हमने रिपीट कर लिया, आप इसको रिवाइंड करके फिर से सुनो, आपको याद हो जाएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट
ऑडिटर्स कंसिडरेशन, ऑडिटर की कंसिडरेशन क्या होगी? ऑडिटर जो है यूजर एंटिटी का जो ऑडिटर है उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कंट्रोल्स हैं जो हमारी यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यूजर एंटिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है उसमें जो वो ट्रांजैक्शंस का अमाउंट मेंशन कर रही है या ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज कर रही है, वो अमाउंट सही है या नहीं, इस बात को इंश्योर करने के लिए यूजर एंटिटी ने क्या किया है, ये सर्विसेज, पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसको चेक करने पर कोई कंट्रोल लगा रखा है कि जो काम किया जा रहा है बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज परफेक्टली ट्रू एंड फेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल। सो ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा कि मेरी खुद की एंटिटी जिसका मैं ऑडिट करने आया हूँ या आई हूँ उसने कितने कंट्रोल्स लगा रखे हैं। तो ऑब्वियसली आप दूसरे के कंट्रोल्स चेक करने जा रहे हो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कितने कंट्रोल्स लगाए हैं, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी खुद की एंटिटी पर देखना चाहिए उसने क्या रेलेवेंट कंट्रोल्स लगाए हैं टू see whether the transactions or whether the services provided by the service organization are reflecting true and fair view। तो ये चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब दूसरी पॉइंट ये आता है कि अगर यूज़र ऑडिटर को ये कंट्रोल्स के लिए ईजीली डेटा मिल जाता है, पता चल जाता है कि किस तरीके से ये कंट्रोल्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर ऑडिटर इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि क्या यूज़र एंटिटी ने कंट्रोल्स लगाए हैं या नहीं लगाए, तो उस केस में ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि वो सर्विस ऑडिटर से बोल सकता है कि मुझे आप टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट दे दो। टाइप 2 रिपोर्ट है तो वेल एंड गुड है, टाइप 1 रिपोर्ट है तो भी चलो काम चलाना पड़ेगा, आपको खुद आगे और प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंस मैं बता देती हूँ। टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर बताया होता है कि जो सर्विस ऑडिटर है ना, टाइप 1 रिपोर्ट में इतना बता देगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंट्रोल्स लगा रखे हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ें कर रखी हैं। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि ये कंट्रोल्स लगा रखे हैं और ये वाले जो कंट्रोल्स है ना वो थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट भी कर रहे थे इफेक्टिवली। तो बताओ कौन सी वाली रिपोर्ट ज़्यादा यूजफुल होगी फॉर द यूजर ऑडिटर? टाइप 2 रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही सिर्फ ये बताया हुआ है कि कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, बल्कि ये भी बता रखा है कि ये जो कंट्रोल्स लगाए हैं ये पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहे थे। तो किससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? फ्रॉम दी टाइप 2 रिपोर्ट। सो दैट इज वाई इट इज रिटन इफ टाइप 2 रिपोर्ट इज अवेलेबल, तो डेफिनेटली आपको टाइप 2 रिपोर्ट लेनी चाहिए। नहीं है तो फिर आपको और क्या करना पड़ेगा, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है। सेकेंड, विजिटिंग दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इफ परमिटेड। अगर आपको अलाउड है, आपको परमिशन मिल जाती है इस बात की कि आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर विजिट कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन विजिट दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज यू कैन कॉन्टैक्ट दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दी यूजर एंटिटी। आप यूजर एंटिटी के थ्रू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये नहीं अपनी मर्जी से खुद से कर रहे हैं फोन, नो। Using another auditor, which is the service auditor, to perform the procedures that are necessary to evaluate the controls at a SO। तो आप खुद ना परफॉर्म करके जो प्रोसीजर्स खुद परफॉर्म करते हैं वही प्रोसीजर्स आप सर्विस ऑडिटर को बोल सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर आप परफॉर्म कर दो और उसके रिजल्ट्स हमें कम्युनिकेट कर दो, जिससे कि ऐसी तसल्ली हो जाए कि जो हम चीज़ें चेक करना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं। सो मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऑडिटर्स कंसिडरेशन क्या है। पहला, यूज़र एंटिटी को इवैल्यूएट करो कि यूज़र एंटिटी ने क्या क्या रेलेवेंट कंट्रोल्स लगा रखे हैं ओवर दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, अगर ऑडिटर इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है तो कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि वो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट obtain कर सकता है, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर सकता है अगर उसको परमिशन मिल जाती है। तीसरा, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट कर सकता है यूजर एंटिटी के थ्रू। और चौथा, वो अनदर ऑडिटर मतलब सर्विस ऑडिटर की हेल्प लेकर वो सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करवा सकता है थ्रू द सर्विस ऑडिटर जो उसको ज़रूरी लगते हैं, जिससे कि उसको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल्स एट अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मतलब अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अब एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में नहीं है, एक से ज़्यादा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी एंटिटी 2। एंटिटी 2 ने भी अपना काम कुछ आउटसोर्स कर रखा है टू दी एंटिटी 3।
तो अब जो एंटिटी 3 है ना, दैट इज माय सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यूजर एंटिटी अवेलिंग दी सर्विसेज एसओ की, एंड एसओ ने सब सर्विस कर रखा है और टू दी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑडिटर जो है वो ऑडिटर ऑफ एसओ है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है उसको हम सब सर्विस ऑडिटर बोल सकते हैं। अगर आपके सर्विस ऑडिटर ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट के अंदर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ कवर कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है, तो बहुत ही बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर उसने एक्सक्लूड किया हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से सर्विसेज हैं जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, और हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें SA 402 अप्लाई करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। क्योंकि अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस ऑडिटर हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिलेटेड कंट्रोल्स क्या हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें सारी की सारी डिटेल्स इजीली मिल जाती। बट नाउ ऐसा नहीं हो रहा, तो हमें SA 402 अप्लाई करना पड़ेगा ऑन दी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अब ये अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा on the significance of the services which are being provided by the sub service organization to the service organization and the service organization to the user entity. So this all depends upon the significance of the services. ठीक है, nature and significance of the services. So let's cover this from here. मैंने ये चार्ट किस तरीके से बनाया, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। यूजर एंटिटी इज अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विच इज अगेन यूजिंग द सर्विसेज ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। द ऑडिटर ऑफ एसओ, और वी कैन कॉल द सर्विस ऑडिटर, prepares a report in which he might include or might exclude the relevant internal controls and objectives and related controls of the sub service organization। अपनी डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जा रही है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम आएगा। उसके अंदर अगर इन चीज़ों की डिटेल्स दे रखी हैं कि क्या रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स और उसके रिलेटेड कंट्रोल्स हैं ऑफ दी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में बताया हुआ है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप ऑफ एंगेजमेंट कितना है एज एन ऑडिटर, तो बहुत ही बढ़िया बता ही रखा है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। It all depends upon the method of recording of the service auditor. सर्विस ऑडिटर किस कौन सा मेथड ऑफ रिपोर्टिंग यूज कर रहा है। अगर वो इंक्लूसिव मेथड यूज कर रहा है तो बल्ले बल्ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सारी डिटेल सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की यहीं मिल जाएंगी। अगर वो नहीं यूज कर रहा, मतलब एक्सक्लूसिव मेथड, मतलब कार्व आउट मेथड, अगर कार्व आउट मेथड यूज कर रहा है फॉर द रिपोर्टिंग, तो इस केस में क्या होगा, जो भी सर्विसेज सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है टू द यूजर एंटिटी, वो अगर हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें SA 402 की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हमारा ये जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी क्या है, रेलेवेंट है टू द ऑडिट, तो ही हमें SA 402 अप्लाई करना पड़ेगा। अब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या होगा इन प्रोसीजर्स का, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। Yes, okay. Next topic, responding to the assessed risks of material misstatements। अब हमें risks of material misstatements मिल गए हैं, आइडेंटिफाई हो गए हैं, अब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं विद रिस्पेक्ट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असर्शंस, एंड क्या क्या चीज़ें आपको रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं या नहीं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना। जो भी बात मैं बोल रही हूँ उसके लिए मेरे पास एक ऑडिट एविडेंस, पुख्ता सबूत होना चाहिए, सफिशिएंट, दैट शुड बी सफिशिएंट ऑल्सो एंड एप्रोप्रिएट ऑल्सो। सो दैट इज वाई आई हैव टू सी वेदर वी हैव दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज। इफ येस देन इट्स गुड, यूजर एंटिटी के पास सारी की सारी डिटेल्स, रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ है, बहुत बढ़िया। नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, या फिर मुझे सर्विस ऑडिटर को बोलना पड़ेगा कि वही सारे प्रोसीजर्स जो मैं एज अ यूजर ऑडिटर परफॉर्म करती इन द यूजर एंटिटी, अगर यूजर एंटिटी ने इसको आउटसोर्स नहीं किया होता तो वही सारे प्रोसीजर्स आप मुझे उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करके उनके रिजल्ट्स बता दो। ठीक है, ओके।
So determine whether the sufficient and appropriate audit evidences with respect to the financial statements assertions are available from the records held at user entity. If it is yes, okay, बहुत बढ़िया. नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे या फिर सर्विस ऑडिटर की हेल्प लेकर वो प्रोसीजर्स को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर परफॉर्म करवाना पड़ेगा. अब यूजर एंटिटी के पास अगर कोई रिकॉर्ड्स है ही नहीं तो क्या वो उन पर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर पाएगा? नहीं. तो इसी वजह से तो हमें सर्विस ऑडिटर को बोलना पड़ रहा है कि भैया आपके पास हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स, तो आप वो प्रोसीजर्स अप्लाई करके मुझे बता दो कि ठीक है या नहीं. या फिर मुझे हो सकता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिटर्मिन करने पड़ेंगी मैं क्या क्या करूँ जिससे कि मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए और रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस. अब आपको पता चला कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड को रिपोर्ट किया है या फिर कोई भी ऐसे नॉन कंप्लायंसेस हुए थे विद द लॉज एंड रेगुलेशंस या फिर कुछ ऐसी मिस स्टेटमेंट्स थी जो करेक्ट भी नहीं की गई और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकती हैं ऑफ द यूजर एंटिटी. यूजर एंटिटी से मतलब है मुझे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है. मुझे सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से उतना ही मतलब है जितना मेरी यूजर एंटिटी को अफेक्ट कर रहा है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द यूजर एंटिटी को अफेक्ट कर रहा है. क्योंकि मुझे ओपिनियन किस पर देनी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं, यूजर एंटिटी पर. तो जो चीज़ें मेरी यूजर एंटिटी को अफेक्ट करेंगी उन पर मुझे काम करना है. ठीक है. तो अब क्या करोगे, आप यूजर एंटिटी से इंक्वायर करोगे कि क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी फ्रॉड के केसेस या ऐसा कुछ हुआ है क्या, उन्होंने लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस नहीं किया है या फिर कोई ऐसी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है जो आपकी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रही हैं. आपको इस बारे में यूजर एंटिटी से इंक्वायर करना पड़ेगा. ठीक है. आपको अगर ऐसा पता चलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फ्रॉड नॉन कंप्लायंसेस के केसेस नहीं है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या मुझे जो मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाली थी उनका नेचर टाइमिंग एक्सटेंट पर कोई इफेक्ट आने वाला है, इम्पैक्ट पड़ने वाला है. अगर पड़ने वाला है तो कंसिडर दैट. देखो कि क्या आपकी ऑडिट कंक्लूजन्स जो अभी तक कुछ और बन रही थी अब कुछ और हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस नॉन कंप्लायंस या फ्रॉड. आपको अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ का इफेक्ट कैसे लेना है, दिस इज ऑल यू हैव टू इवेल्युएट एज एन ऑडिटर ऑफ द यूजर एंटिटी. तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि अगर कोई भी फ्रॉड या नॉन कंप्लायंसेस का हिंट लगता है, पता चलता है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कुछ फ्रॉड हुआ है या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है या फिर कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ है विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, तो हम देखेंगे कि क्या उनका इफेक्ट इम्पैक्ट हमारी यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आ रहा है या नहीं. नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पर उस चीज़ का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि हमारी कंक्लूजन्स हमारी रिपोर्टिंग पर इस चीज़ का क्या फर्क पड़ने वाला है. ओके. नेक्स्ट, रिपोर्टिंग बाय द यूजर एंटिटी. नाउ अगर यूजर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाते, जो भी सर्विसेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है उससे रिलेटेड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अगर हमारा यूजर ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, मॉडिफाई कर देगा अपनी ओपिनियन. ठीक है. क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. यूजर ऑडिटर अपनी जो सर्विस ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट को रेफर नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रेगुलेशन. अगर ऐसा लगता है कि उससे भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उसको कहीं से भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो वो जब तक रेफर नहीं करेगा सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट तो जब तक लॉ और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हो जाती. वैसे नहीं करेगा अगर उसको ऐसा लगता है कि उससे वो फिर भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा. So, reporting by the user entity, if the user entity is unable to obtain the sufficient and appropriate audit evidences regarding the services provided by the service organization which are relevant to the audit of user entity, then in that case the auditor should modify the opinion. User auditor not refer to the report of service auditor unless it is required by the laws and regulations. Okay. अब सबसे इम्पोर्टेंट
रिपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, इसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन भी रहती है कि टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में फ़र्क क्या है। तो मैंने आपको बहुत इजी सा डिफरेंस बताया था, एंड इज़ दी ओनली डिफरेंस। टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है? टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, उनकी डिटेल्स बता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन वो पूरे साल ऑपरेट कर भी रहे थे इफेक्टिवली या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट में बताया जाता है। तो अगर आपको टाइप 1 रिपोर्ट दी जाएगी, वो ज़्यादा आपको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, या फिर टाइप 2 आपको ज़्यादा रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगी? तो ऑब्वियसली आपको टाइप 2 रिपोर्ट रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि आप एक बारी को बिल्कुल श्योर हो जाओगे ना कि पूरे साल ही कंट्रोल्स थे, तो जो भी डेटा है, जो भी प्रोसेसिंग हुई है, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर वो कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ऑन दी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एग्जिस्ट कर रहे थे, तो क्या आप इससे श्योर हो जाओगे कि बाकी का सारा काम पूरे साल में जो हुआ है दैट विल बी परफेक्टली फाइन? नो। सो दैट इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ बेनिफिशियल इफ़ वी गेट द टाइप 2 रिपोर्ट। बट नहीं मिली तो टाइप 1 से काम चलाना पड़ेगा, और जो भी प्रोसीजर्स हैं आगे के वो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। Report on description and design of internal controls at the service organization comprises of description and report by the service auditor. Description भी होती है और report होती है by the service auditor. Description कौन prepare करता है? Description is prepared by the management of the service organization of SO's systems, control objectives and the related controls that have been designed and implemented at a specified date. स्पेसिफाइड डेट पर, जिस दिन मैं बना रही हूँ रिपोर्ट, मैं जो मैनेजमेंट है वो उस चीज़ की जो डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ वो किसी स्पेसिफाइड डेट पर दे रही हूँ, और सिर्फ बता रही हूँ कि उसी दिन वो सारी चीज़ें तो प्रिवेल कर रही थी, रेलेवेंट थी। रिपोर्ट बाय सर्विस ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वेइंग द रीजनेबल एश्योरेंस दैट इंक्लूड्स सर्विस ऑडिटर्स ओपिनियन on the description of SO's systems, control objectives and the related controls, and suitability of design of the controls to achieve the specified control objectives. So क्या ये suitable है या नहीं, जिस पर्पस के लिए कंट्रोल्स लगाए हैं उसके लिए suitable है या नहीं, इस बारे में वो दे देगा ऑडिटर अपनी ओपिनियन, सर्विस ऑडिटर, और डिस्क्रिप्शन जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, इस बारे में अपनी ओपिनियन दे देगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। और ये जो डिस्क्रिप्शन थी ये किसकी थी? एट अ स्पेसिफाइड डेट थी, तो स्पेसिफाइड डेट के लिए ही आपको अश्योरेंस मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। वहीं अगर टाइप 2 रिपोर्ट की बात करूँ तो सब कुछ सेम है, द ओनली डिफरेंस इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर इज ऑल्सो बीइंग कंफर्म्ड ओवर हियर। सो रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन and operating effectiveness of the controls at the service organization. It comprises of two things, same as the type 1 report, description and the report by the service auditor. Description prepared by the management of SO system, control objectives and the related controls that have been designed and implemented as at a specified date or throughout a specified period. ठीक है? And in some cases their operating effectiveness throughout a specified period. I hope we are clear till here. A report by service auditor, objective क्या होता है? Reasonable assurance convey करना कि जो description है उसके ऊपर आपको ओपिनियन देनी है, आपको बताना है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, क्या वो सूटेबल हैं, जिस पर्पस के लिए उन कंट्रोल्स को डिज़ाइन किया गया है, क्या वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड कंट्रोल्स, the operating effectiveness of the controls and the description of service auditors, test of controls and results thereof. ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बताई जाती है कि सिर्फ लगाए नहीं हैं, उनको काम भी वो अच्छे से कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए उसको लगाया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एसे। हमने पूरा एसे डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट के साथ कवर किया है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छे से हुई होगी। क्विकली रिवाइज करना चाहते हो तो लेट्स रिवाइज इट, नहीं करना चाहते तो स्किप कर देना पार्ट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एसए 402 क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। तो एसए 402 की एप्लीकेबिलिटी, सबसे पहले तो नाम, एसए 402 इज द ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। इट्स एप्लीकेबिलिटी इज ऑन दी दोज एंटिटीज विच आर यूजिंग और विच आर अवेलिंग द सर्विसेज फ्रॉम अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। What is the objective of the auditor? The auditor's objective is to obtain an understanding of nature, significance of the services being provided by the SO and their effect on the user's entity
internal controls which are relevant to the audit sufficiently to identify and assess the risks of material misstatements. The auditor will design and perform the audit procedures which are responsive to those risks being identified. Right now, matters on which the user auditor requires the understanding. So risk assessment procedures, risk assessment process. So the nature of services being provided by the service organization, the significance of the services provided by the service organization, the nature and materiality of the transactions being processed by the service organization, the nature of relationship between the user entity and the service organization, the degree of interaction between the activities of SO and those of the user entity. What are the audit considerations? So the user entity shall evaluate the design and implementation of the relevant controls being exercised by the user entity over the SO. कौन से controls है जो user entity exercise कर रही है on the SO? If the user auditor is unable to collect information from the user entity, so he may perform the procedures. For example, obtain the type 1 report or the type 2 report if available. He can visit the SO if he is being permitted to do so. He can contact the SO through the user entity, and he can also use the service auditor to perform the procedures that are relevant or necessary to evaluate the controls at the SO. Okay. Now, information with respect to controls at the sub-service organization, when you want that, what will happen? The service auditor can provide a report which can be inclusive or exclusive, which means the method of reporting by the service auditor can be carve out or inclusive. If it is inclusive, well and good. If it is not, carve out है, carve out के case में, then the services being provided by the sub-service organization to the user entity which are relevant to the audit, auditor will have to apply the requirements of SA 402. The nature, timing and extent will depend upon the nature and significance of the services. What do you mean by inclusive or carve out report? Inclusive report means the service auditor has included the details of relevant internal controls, objectives and related controls of the sub-service organization in the service organization's description of its system and in the service organization's scope of engagement as an auditor. Okay, if it has not been included, then it will become a carve out report. Responding to the assessed risks of material misstatements, so auditor will determine whether he is able to obtain the sufficient and appropriate audit evidences with respect to the financial statement assertions. If they are available from the records which are held by the user entity, well and good. If it's not, then the auditor will have to either perform the further audit procedures or he will have to use the another auditor to perform those procedures at the service organization, which you may say the service auditor will perform. Okay, now the audit procedures in case of fraud or non-compliance by the service organization. If you see as an auditor that there are some instances of fraud and non-compliances with the laws and regulations, or there are some uncorrected misstatements which are affecting the financial statements of the user entity, so the user entity auditor, that means the user auditor will inquire the user entity whether the service organization has reported so and so instances. If yes, the auditor will have to evaluate the impact on the nature, time and extent of the further audit procedures, including his conclusions and the report. If it is not, well and good. Okay, now reporting by the user entity. अगर user entity के auditor को ऐसा लगता है he is unable to obtain the sufficient and appropriate audit evidences regarding the services being provided by the service audit organization which are actually relevant to the audit of user entity, so in that particular case the user auditor will modify the opinion. User auditor will not refer to the report of service auditor unless it is required by law and regulation. There are two types of report, type 1 report, type 2 report. Type 1 report is a report on the description and design of the internal controls at the service organization at a specified date, which is prepared by the management, and the opinion is given by the service auditor on its functioning and its suitability. Whereas type 2 report is also similar to that of type 1 report. The only difference is that the operational efficiency of these controls is also been checked by the service auditor, and the service auditor gives the opinion on the operational effectiveness of the controls, right? So this was the basic difference. The description of the internal controls is definitely prepared by the management and it is being audited by the service auditor. I hope आपको ये पूरा ऐसे हमने 3 बार कर लिया एक तरीके से. पहले ब्रीफली समझा था, फिर उसको डिटेल में कवर किया और नाउ हमने रिविजन भी कर लिया. सो आई होप आपको ये ऐसे बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, याद हुआ होगा.
डोंट फॉरगेट, आपको क्या करना है, इस ऐसे को अभी मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको फटाफट से नोट्स गो थ्रू करने हैं, या तो ये नोट्स अपने नोट्स विच एवर वे यू वांट, फिर क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल्सो आपको पता चलेगा आपको कितना याद हुआ है। आंसर्स मत देखना, क्वेश्चन देखकर ट्राई टू रिकॉल कि क्या क्या आंसर इसमें होना चाहिए, फिर लुक फॉर द आंसर कि वही आंसर है या नहीं, क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स हैं जो मुझे लिखने की और ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं है मैं कोई पॉइंट्स मिस आउट कर रही हूँ। ओके, so yeah, this is all for today guys. Thank you so much for watching the video and I hope you enjoyed it. If you did, please give a like, hit the like button and share it with your friends so that they can also avail the benefits of these videos and revise the essays multiple times. And if it added any value to your studies, please subscribe to the channel. And that's all for today. I'll see you in the next video. Bye bye.